Hello bachon, very good more learning to all of you. I am your MSD sir and you are watching IPL Interactive Physics Learning for NEET as well as IIT JEE. And guys, this is the mock test number 34 part 2. In previous video, I have solved question number 1 to 25 and here I am going to solve 20 questions, means question number 26 to question number 45. Okay, so without wasting the time, let's start the video. So now you can see the question number 26 is here on your screen and that is saying the gauge pressure in both the tires of the bicycle is 6.9 into 10 to the power 5 Pascal. If the bicycle and the person riding it have the combined mass of 90 kg, what is the area of contact of each tire in the ground? So for that, what you have to do, just you have to note it down the data. So data is given as the area of one tire. That area is given as, you have to find, this is the question mark, and the pressure is given, pressure that is you can say in MKs, this is given as 6.9 into 10 to the power 5 and this is given in Pascal. Okay, and now the weight W, actually whatever the force, that is the weight, and this is you can say the mg, and m is given as 90 multiplied by g, that is the 10, and you can say this is the 90 to 10 900 Newton, right? So we have the formula that P is equal to F upon A, and here you have to note it down that you have two tires, so the area you should multiply it by 2. So now we have to find what is actually the area. So here due to 2A that I have put 2 here. Okay, now let's put the value of P and F and all that. First of all, we have to find area A. So we can write that is A is equal to F divided by 2P. Okay बच्चों, so यहाँ से देखते हैं एरिया का हमें वैल्यू निकालना है और F की वैल्यू जो mg है वो मैंने यहाँ पे 900 रख दी है, ट्वाइस ऐसे ही लिखा हुआ है, और उसके बाद जो प्रेशर आपको दिया था उस प्रेशर की वैल्यू रख लेते हैं. G की वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं दी हुई है तो हम लोग ने इसलिए इसको 10 लिया हुआ है, और फिर यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट करी जो A निकालना है, और उसके बाद हमें यहाँ से प्रेशर चाहिए और प्रेशर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है बच्चों, 6.9 इंटू 10 पावर 5. सो यहाँ पे 6.9 इंटू 10 पावर 5 ऐसा रख. ओके, तो अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 450, and now you will get 450 divided by 6.9 into 10 to the power minus 5. Okay, so 10 power 5 था, ऊपर ले गए इसलिए 10 power minus 5 हुआ है, and now after the calculation that you will get the value as 6.39 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एमकेएस में कर रहे थे और सारी वैल्यूज हम लोग ने एमकेएस में रखी थी तो एमकेएस में ही आंसर आएगा. लेट्स सी कि यहाँ पे कोई आंसर है आपका ऐसा 6.39 अप्रोक्सीमेटली. सो ये एग्जैक्ट नहीं आएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेशन आएगा, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए. सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं तेजी से क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. द रे पी क्यू एज गिवन इन द क्वेश्चन, द रे PQ shown in figure suffers minimum deviation. So you have to note it down that the minimum deviation means it is denoted by delta m. This is given, right? And minimum deviation in an equilateral prism angle A, two more identical prism B and C, one of the same material, and A are now placed in contact as shown in figure. If prism A produces a minimum deviation of delta m, the deviation produced by the combination of prism A, B and C. So बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर प्रिज्म से कोई लाइट रे पास करती है, सपोज ये लाइट रे है, यहाँ पे इंसिडेंट हुई और इस तरह से इसको ऐसे पास करके यहाँ जाना था, तो एक इसका डेविएशन यहाँ होगा और एक डेविएशन यहाँ होगा. तो जो भी डेविएशन होता है, दैट डेविएशन इज ऑलवेज टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म एंड दैट डेविएशन, मिनिमम डेविएशन इज गिवन बाय डेल्टा एम. सो अभी आप देख रहे हो कि ए से जो प्रिज्म होगा, ए प्रिज्म से डेविएशन होगा नीचे डेल्टा एम इस तरह से, और फिर बी का बेस ऊपर है तो बी से फिर ऊपर चला जाएगा, और फिर सी का बेस नीचे है तो सी से नीचे आएगा. तो देखो ये जो दो डेल्टा एम होंगे ए और बी के, एक से आप प्लस डेल्टा एम मान लो, ठीक है, तो दूसरा वाला बी है उससे माइनस डेल्टा एम लेना पड़ेगा, और फिर तीसरा सी है उससे प्लस डेल्टा एम लेना पड़ेगा. तो ये तीनों दो कैंसिल होके एक ही बचेगा. सो द फाइनल आंसर शुड बी डेल्टा एम.
and your answer here you can see and you can take the correct answer as a C. सो बच्चों सी ऑप्शन यहां पे हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 कह रहा है द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ। सो रेड लाइट, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डेटा सबसे पहले नोट करेंगे, लैम्डा आर दिया है और यूनिट देखेंगे 6400 एंगस्ट्रॉम में दी है। तो अगर दूसरी भी यूनिट एंगस्ट्रॉम में होगी तो मीटर में कैंसिल कर, मीटर में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो कैंसिल हो जाएगी, राइट। एंड इन एयर द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 angstrom in air has a wavelength of 400 angstrom। ये जो वेवलेंथ दी है बच्चों ये एयर में है और उसी के बाद लैम्डा आर की ही वैल्यू इसको डैश कर लेते हैं एंड दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम अगेन। एंड ये किसमें दी हुई है बच्चों, ये कहा गया है ग्लास में है। ओके, if the wavelength of violet light in air is इतना then the wavelength of the glass। so यहां पर आपको violet के लिए यहां lambda violet ये एयर में है और इसकी वैल्यू 4400 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, करेक्ट। और फिर यहां पे लैम्डा v डैश की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आपको पता है कि जो v इज इक्वल टू होता है वो n लैम्डा होता है, करेक्ट। अभी आपको अगर हम यहां से म्यू की वैल्यू निकालें, म्यू की ग्लास की वैल्यू निकालें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू देखी जाए तो आप इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला तो रिलेशन हो गया लैम्डा का और आपको पता है रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अब अगर हम म्यू जी की बात करें और उसको v इक्वल टू एन लैम्डा, क्योंकि आपको पता है म्यू जी की वैल्यू जो होगी वो होगी c डिवाइडेड बाय v इन ग्लास, करेक्ट। इसलिए एयर में है तो हम c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लिखेंगे तो यहां लैम्डा एयर में आ जाएगा और यहां पर लैम्डा की वैल्यू किस में आ जाएगी, ग्लास में आ जाएगी। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहने वाला है। इसका मतलब लैम्डा एयर और लैम्डा ग्लास का रेशियो चाहे वो किसी भी कलर के लिए हो वो सेम होगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग लिखेंगे बच्चों लैम्डा आर डिवाइडेड बाय लैम्डा आर डैश इज इक्वल टू that is lambda v divided by lambda v dash। so अब इसको सॉल्व करते हुए lambda r की वैल्यू आपके पास 6400 एंगस्ट्रॉम में ही है तो हम यूनिट नहीं लिखते हैं क्योंकि सारी एंगस्ट्रॉम में ही है। lambda r dash आपको 4000 मिल रहा है that is equal to lambda v आपको 4400 मिल रहा है and divided by lambda v dash की वैल्यू चाहिए। सो लैम्डा वी डैश की वैल्यू बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 2750 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो यहां पे इसका आंसर आप देखोगे इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन करेक्ट जो होगा दैट ऑप्शन इज बी। ओके, सो नाउ द की पॉइंट दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर इज दैट द refractive index of any medium can be written as c divided by velocity of the light in that medium. C is the velocity in vacuum and c is equal to n lambda, and the key point is frequency never ever change in refraction as well as reflection. So whatever the ratio of v, the same ratio that lambda means the wavelength should have, and when we apply this formula we'll get the answer। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है बच्चों और इसमें कुछ सिंपल सा है, देखते हैं। 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड 4 kg ओके आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। तो सबसे पहले बच्चों जैसे मैंने बताया आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहला उसूल है फिजिक्स के क्वेश्चन करने का कि सबसे पहले आप उसका डायग्राम बनाएं। सो डायग्राम बनाते ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे 10 kg है और यहां बच्चों आपसे कहा गया है कि दूसरा मास है उसको 4 kg बना लिया अंदाजे से, जिससे हमें याद रहे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, किसका मास कम है किसका मास ज्यादा है। एंड कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग नेग्लिजिबल मास एंड प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल एंड सरफेस है, इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 है तो भी वहां पे शो कर दी गई है। एंड इंपल्स, पॉइंट टू बी नोटेड, इंपल्स गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड टू द हेवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर ब्लॉक। तो इसको अचानक से एक इंपल्स दिया और उस इंपल्स से इसने इसको वेलोसिटी इंपार्ट कर दी। दैट इंपार्टेड वेलोसिटी इज गिवन एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 14 मीटर पर सेकंड, राइट, टू द हेवियर ब्लॉक इन अ डायरेक्शन ऑफ लाइटर ब्लॉक, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। So velocity of the center of mass that you have to find.
सो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास के लिए आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम अभी भी कांस्टेंट है, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सीधे VCM, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों m1v1 प्लस m2v2 divided by m1 plus m2, correct? So this is the actually the formula for the velocity of the center of mass. Now you can say m1 is 10, v1 is 14, and here you can say plus m2 is 4, v2 is 0 divided by m1 plus m2, so 10 plus 40. And now what you will get? You will get here 10 plus 14, 1, and here you will get 10 plus 4. So the total would be 14, and 14 will be cancelled out, and you will get 10 meter per second. So here we can say बच्चों VCM center of mass की जो velocity होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और इसी के साथ आपको ऑप्शन करेक्ट जो मिलेगा वो करेक्ट ऑप्शन बच्चों कौन सा मिल जाएगा VCM का? यस, C इज द करेक्ट ऑप्शन, और इसी के साथ 29 करेक्ट होता है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है द 1/4 सेक्शन इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस r, ओके, एंड मेड टू रोटेट अबाउट अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस दैट व्हाटएवर दिस। सो आपको ये एक थ्योरम जो हमारी 5 थ्योरम्स होती हैं उनमें से ये एक डिस्क है और इसको रोटेट किया जा रहा है। अब अगर डिस्क को आप यहां से ऐसे सपोज ये इसका एक्सिस है और इस एक्सिस से आप रोटेट कर रहे हो, तो इस रोटेशन को अगर हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं और यहां से इस तरह से आप देखते हो ये ऐसे चलेगा यहां से, करेक्ट? सो इसको हमने मास m रखा और इसकी रेडियस को कैपिटल R रखा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों I इज इक्वल टू डिस्क का दैट इज mr²/2। अब यहाँ पे की पॉइंट बच्चों ये है कि अगर हम इसको एक्सिस के सिमेट्रिकली कट करते हैं, अगर यहां से इस पार्ट को कट कर लिया या और कोई पार्ट आपने कट कर लिया और यहां से एक पार्ट भी है और वो भी उसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, आपने मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चेंज किया, बस यहां पे इसका मास m हो गया है एंड रेडियस इज r, एक्सिस भी वही है, सब कुछ वही है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू स्मॉल m r²/2 होगा। इस मामले में चेंज नहीं होगा। ये आपने रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको रिवाइज करिएगा प्लीज, और ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट को जो मैंने यहाँ पे बताया है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे रिंग और डिस्क के भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो अभी आपको दिख रहा होगा कि इस कंसेप्ट के हिसाब से इसका आंसर फॉर्मूला वही रहेगा और उसका आंसर हो जाएगा बच्चों A, और यहां से क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन अ फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द डायोड्स इज रिवर्स्ड बायस। सो बच्चों रिवर्स बायसिंग क्या होती है कि जैसे ये आपको डायोड है, हाँ, और इस डायोड में जो ट्रायंगल वाला पार्ट होता है उसको P कहते हैं और जो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम N कहते हैं। सो रिवर्स बायसिंग का मतलब है कि जो N है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो और जो P है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो, मतलब ट्रायंगल वाला पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट होना है। सो अभी आप इसको देखेंगे अगर, सो यहाँ पे चलो मैं ये कलर चेंज करता हूं बच्चों, जिससे आपको यहाँ पे विजिबिलिटी साफ हो जाएगी। सो पहला वाला जो ऑप्शन देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे ये नेगेटिव है, सो नेगेटिव है और ये 0 है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है। सो ये अगर हायर पोटेंशियल पे है तो आप इसको पॉजिटिव मानेंगे, और ये नेगेटिव है तो लोअर पोटेंशियल पे है तो आप इसको नेगेटिव मानेंगे, और उसके हिसाब से आपको दिखेगा ये फॉरवर्ड बायसिंग है, और फॉरवर्ड बायसिंग है तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन की तरफ, बी देखो। सो बी में बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव है तो ये प्लस से कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है तो ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल आ गया देखो वो हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव हो गया, और ये जो 0 वाला आ गया
वो लोअर पोटेंशियल हो गया, वो निगेटिव हो गया। अब अगर ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इससे कनेक्ट हो गए बच्चों, तो अब आप क्या करोगे कि इसको देखो रिवर्स बायसिंग आ गई, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो बी वाला एग्जैक्टली करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाता है बच्चों बी। और अगर आंसर मिल गया है तो आप ये देख लो बाकी जो होंगे वो देखो पॉजिटिव से है, हायर पोटेंशियल से है ना। तो यहां पे देखो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो बहुत से लोग जो सी में जरूर कंफ्यूज होंगे। तो हमें जो पॉजिटिव का मतलब होता है ना, दैट इज द हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव पोटेंशियल जरूरी नहीं है, नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव का मतलब है लोअर पोटेंशियल। सो अभी देखो ये 10 और 5 है, तो इसमें हायर और लोअर कहां है, ये देखो पॉजिटिव प्लेट है, तो ये हायर से है तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा, ये लोअर से तो इसको निगेटिव माना जाएगा, और फिर से फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, तो ये भी आंसर नहीं है। यहां से देखो ये निगेटिव है और ये, अभी आप इसको देख रहे होगे कि ये -12 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है, तो इसमें से हायर कौन है, देखो ये ज्यादा निगेटिव है, इसका मतलब ये लोअर है, तो इसको निगेटिव मानोगे, और इसमें आप अगर +7 ऐड कर दो तब तो जाके आपको मिलेगा ना -5 वोल्ट, यानी आपने कुछ ऐड किया, इसका मतलब ये वाला जो है वो ज्यादा वोल्टेज पे है। तो अगर ये हायर पे है, ये लोअर पे है, तो फिर से देखो फॉरवर्ड कंडीशन हो गई, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो अल्टीमेटली करेक्ट आंसर वुड बी बी। Okay, so let's move to the next question, and that is the question number 32. Again, this question is from the modern physics. So modern physics is actually very important topic for your NEET exam, so please take care of that modern physics and try to solve as many question as you can from the modern physics, क्योंकि modern physics के बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, आसान होते हैं और सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और आप थोड़ा सा एफर्ट करके, क्योंकि आप मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल लास्ट में पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ाया नहीं जाता डिटेल में, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या है उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो और मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर आप पूरी मास्टरी हासिल कर लो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर नीट में कर सकते हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, in the circuit shown in figure, the base current IB is 10 microampere and the collector current is 5.2 milliampere. ध्यान रखना माइक्रो और मिली में। The voltage VBE across the base and ammeter. So base और ammeter के बीच का वोल्टेज यहां से पूछा हुआ है। तो अभी कुछ चीजें तो आपको, एक फॉर्मूला तो आपको याद होगा कि वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमीटर is equal to voltage across CC means common collector। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, और माइनस हो जाएगा IR, ठीक है। और ये जो IR होगा वो आपको किसके लिए लगाना है बच्चों, बेस के लिए। सो VB आपको कैलकुलेट करना है, VCC आपको कहीं से दिख रहा होगा, ठीक है, जो लास्ट में है कॉमन, जो इसके कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज है, और यहां से आपको बच्चों देखो ये दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है इसको हम लोग आउटपुट वोल्टेज में लिख लेते हैं, और वो है 5.5, ठीक है, माइनस। अभी ये बेस के लिए है, तो IB शायद आपको दी हुई थी क्वेश्चन में, बोलो बच्चों IB आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कहीं दी थी 10 माइक्रोएम्पियर, यस यहां पे दी है, देखो 10 माइक्रोएम्पियर, राइट। सो 10 माइक्रो मींस 10 टू द पावर -6 इनटू R कौन सा चाहिए, B का, और RB जो आपके पास है वो यहां पे दिया हुआ है, जो इनपुट की तरफ से जा रहा है, राइट। ये IB है और ये RB है जो इनपुट है, ये है 500 किलो ओम। सो 500 किलो ओम, सो ये 500 हुआ, किलो ओम मींस 10 टू द पावर 3। सो यहां से मल्टीप्लाई किया, इधर तो आपको 5.5 ऐसे ही रहने वाला है, माइनस यहां से देखो बच्चों क्या है, 10 की पावर यहां से हो गई 2, सो 5 को ऐसे ही लिख लेते हैं, इनटू 10 पावर ऐड कर लो 3 और 2 5 एंड 1 6। सो इधर आ जाएगी 10 टू द पावर -6 और एक आ जाएगी +6, तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यू विल गेट 5.5 माइनस ऑफ 5, देन वेलोसिटी VBE, voltage across BE, base and ammeter, you will get remaining one 0.5 वोल्ट, एंड शायद आपसे यही पूछा गया था, और इसको आप ध्यान से देखें तो आंसर आपको कौन सा मिल रहा है बच्चों, यस करेक्ट आंसर वुड बी B। So let's move to the next question, question number 33. The specific heat
of an ideal gas varies with temperature. So बच्चों आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आइडियल की गैस की बात करें सो दैट इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। और अगर इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंसी देखेंगे तो वो हो जाएगा टी टू द पावर 0 और इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा इसका डी। तो करेक्ट आंसर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 कहता है 1 kg ऑफ वाटर। सो ये आपको कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है और इसको हम लोग कैलोरीमेट्री की तरह ही सॉल्व करेंगे। कई सारी चीजें इसमें आपको कैलकुलेट करनी होगी, तो डेटा भी ध्यान से देखिएगा। 1 kg ऑफ वाटर। सो यहां पे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे। 1 kg है एंड वाटर दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इज हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक केटल, ओके, हुज हीटिंग एलिमेंट हैज मीन रेजिस्टेंस। सो आप जिससे हीट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस बच्चों है, एवरेज दिया है मीन 20 ओम। आरएमएस वोल्टेज, तो इसको आरएमएस के फॉर्म में ही लिखिएगा बच्चों, हाँ, दैट इज गिवन एज 200 वोल्ट। इग्नोरिंग हीट लॉस, यानी हीट लॉस को आपको इग्नोर करना है फ्रॉम द केटल। टाइम टेकन फॉर वाटर टू इवेपोरेट फुल्ली, और कुछ चीजें जो आपको जरूरत पड़ेंगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जूल पर केजी पर डिग्री में दिया हुआ है और लेटेंट हीट ऑफ वाटर ये दिया हुआ है। सो आपको देखो इस पूरे के पूरे वाटर को इवेपोरेट करने के लिए जो भी आपको यूज होगी वो कहां यूज होगी और कौन कौन सी यूज होगी। सो अभी आप इसको पूरा तो इवेपोरेट, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो कुछ हीट तो जाएगी, और वो हीट कहां जाएगी? वो हीट जाएगी बच्चों इसको पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट जाती है वो आपको पता है वो होती है ms डेल्टा थीटा, ठीक है, ms डेल्टा थीटा। और प्लस उस पूरे वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाने के बाद जब आप उसको इवेपोरेट करेंगे तो वहां लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगी, सो ये हो जाएगी ml इंटू v। सो ये जो टोटल हीट है ये अपने को कैलकुलेट करना है, m की वैल्यू है वो आपको दी हुई है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे जो आपको हीट मिलेगी, ये हीट, हाँ, एक तो इक्वेशन ये हो गई। अब इससे जो हीट मिलेगी वो हीट कितने टाइम में मिलेगी? हीट का फॉर्मूला आपको होता है यहां से, और वो होता है बच्चों Vrms स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। सो जो ये हीट आपको मिल रही है t टाइम में, t यहाँ पे स्मॉल t टाइम है, ये हीट इसको मिल रही है और यूज हो रही है इसको इवेपोरेट करने में। सो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो अगली इक्वेशन में क्या होगा, अगर हम इसको और इस पूरे को इक्वेट करते हैं then we'll get Vrms square divided by resistance into time t is equal to m, को कॉमन ले लेते हैं बच्चों, हाँ, s into delta theta plus latent heat of vaporization, और latent heat of vaporization भी आपको दी हुई है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे सब केजी में दिया हुआ है और यहाँ मिनट में दिया हुआ है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होगा उसमें mks में t सेकंड में मिलेगा। अब अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पे, सो बच्चों Vrms है 200, ये स्क्वायर में होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू रखें तो वो 20 ओम है, ये mks में है। t जो मिलेगा बच्चों वो सेकंड में मिलेगा, और जो m की वैल्यू है उसको हम 1 kg दिया है तो 1 kg रखते हैं। स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है बच्चों? स्पेसिफिक हीट, उस स्पेसिफिक हीट को यहां से दिया हुआ है 4200। सो ये आ जाता है बच्चों 4200 जूल पर केजी, करेक्ट। सो यहां पे आ गया ये जूल पर केजी, और हमने केजी में ही रखा हुआ है और जूल में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लेटेंट हीट भी इसी में है, प्लस लेटेंट हीट m को कॉमन ले लिया था तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को बच्चों कितना रखेंगे? यहां से दिया हुआ है 2260, तो ये आ जाएगा बच्चों 2260। और जो टेम्परेचर था, यहां पे एक चीज और मिस हो गई है, जो टेम्परेचर था बच्चों वो टेम्परेचर का चेंज जो डेल्टा थीटा था वो डेल्टा थीटा भी यहां पे आएगा।
सो मुझे यहां से फिर से इसको लिखना पड़ेगा बच्चों एक बार, क्योंकि डेल्टा थीटा की वैल्यू कहां से कहां चेंज हुई है। इनिशियली जो था बच्चों वो था 20 डिग्री पे, और आपने 20 डिग्री से कहां तक रेज किया उसको 100 डिग्री, क्योंकि इससे पहले जो स्टीम नहीं है वो नहीं बनेगी। तो यहां से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 80, करेक्ट। और देन प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो आपको दी हुई है उसको पुट करेंगे, और वहां पे आपको दी हुई है किलो जूल। तो किलो जूल है तो 2260 इंटू 10⁻³ सो ये आपका पूरा एक्सप्रेशन होगा। और इस एक्सप्रेशन को आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी ज्यादा है। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको आएगी अप्रोक्सीमेटली 1298, बट ध्यान रखना बच्चों ये सेकेंड में है और आपको आंसर मिनट में दिया है। देन व्हाट टू डू, यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट 1298 डिवाइडेड बाय 60। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू 22 मिनट की होगी, और फिर हम इसको यहां पे नोट करेंगे। अब जो बच्चों आंसर होगा वो आंसर आएगा सी, और इस तरह से हम करेक्ट ऑप्शन ले लेते हैं सी, राइट। सो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आती हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, और देखिए इसमें आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। डबल स्लिट एपरेटस is immersed in a liquid of refractive index, वो refractive index दिया है 1.33, और जरूरत पड़ने पर 4/3 अगर कैलकुलेशन इजी करनी है तो हम इसको 4/3 भी लिख सकते हैं। मूव इट हैज अ स्लिट सेपरेशन, यानी जो S1 S2 की वैल्यू है जिसको आप स्मॉल d कहते हैं वो 1 mm है, यानी उसको हम 10⁻³ मीटर लिखें। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन, जो कैपिटल D आप कहते हो बच्चों, that is given as 1.3 meter। सबसे पहले हम लोग डेटा नोट करेंगे। and slits are illuminated by a parallel beam of light whose wavelength in air is, so wavelength आपको दी हुई है उसको lambda 6300 angstrom लिख लेते हैं। now calculate the fringe width, now you have to find omega, right। so omega की वैल्यू आपको अगर पता हो तो हम लोग को लिखना है, फॉर्मूला याद हो, W जिसको या ओमेगा कहते हैं d लैम्डा अपॉन S1 S2। सो d लैम्डा अपॉन S1 S2 सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। d की जगह आप 1.3 लिखेंगे, लैम्डा की जगह आप 6300 इंटू 10⁻⁻10 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय S1 S2 भी तो आपको दिया हुआ है, S1 S2 कितना है 10⁻³ ओके। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.3 इंटू 10⁻⁻4, और ये आपको मिल रहा होगा मीटर में, राइट। और अगर आपको ये मीटर में मिल रहा है तो 6.3 इंटू 10⁻⁻4 आप इसको mm में क्या कर सकते हैं, और mm में अगर देखेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू, ये -4 है तो -3 कर सकते हैं, इसको यहां से 0.63 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसको हटाएं तो हम ओमेगा इज इक्वल टू 0.63 मिलीमीटर, और यहां से आपको दिख रहा होगा बच्चों कि आंसर जो है वो आंसर आ रहा होगा आपका सी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां से आपको मिल जाता है सी, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 बोल रहा है व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर, ओके। सो as shown in figure, if green light is just totally internally reflected, okay, then the emerging ray in air, so यहां पे green है। सो आपको पता है सबसे ज्यादा जो डिविजन, जैसे आपको प्रिज्म में पता हो, राइट। सो प्रिज्म में यहां से ऐसे जाता है, फिर इधर आती है, फिर ऐसे रे जाती हैं। तो इधर से अगर आप सीक्वेंस देखोगे बच्चों तो सीक्वेंस वेबग्योर का होता है, ऐसे VIB, राइट, GYOR, राइट। सो अभी ग्रीन, सो
ग्रीन है, यानी ग्रीन तो 90 डिग्री पे हो गया बच्चों, ये TIR हो गया। सो ये वाला सारा जो पार्ट होगा, अब आप अगर देखो यहां से ये लाइट रे ऐसे जा रही थी तो ये इस तरह से डेविएट होगी, राइट, ऐसे। सो यहां पे आ जाएगा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, यहां ग्रीन हो गया, येलो, ऑरेंज और रेड। सो एयर में कितनी निकलेंगी? 3 निकलेंगी। कौन कौन सी निकलेंगी? येलो निकलेगी, ऑरेंज निकलेगी, रेड निकलेगी, और इसी के साथ अपना जो आंसर हो जाएगा बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 कह रहा है ट्यूनिंग फोक, अच्छा साउंड का है, तो आप इसको ध्यान से देखें। The frequency of a tuning fork A is 2% more than the frequency of a standard tuning fork. The frequency of another fork is 3% less than the frequency of a standard tuning fork. 6 beats are heard when the two tuning fork A and B are excited. The frequency of A is. So simple सा है बच्चों। So क्या करते हैं, अभी स्टैंडर्ड मान लेते हैं, एक है स्टैंडर्ड है और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम मान लेते हैं x, क्योंकि जो चीज हमको कैलकुलेट करनी है उसी को एज्यूम कर लिया। तो अगर ये x है तो अल्टीमेटली आपको x की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। अब यहां पे क्या बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ a इज 2% मोर। सो 2% मोर का मतलब क्या हो गया बच्चों, 2% मोर 1.02 ऑफ x कह देंगे, करेक्ट। ऐसे ही B की जो फ्रीक्वेंसी होगी, B की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3% लेस, तो ये कितनी हो जाएगी, 0.3% कम कर लो x से, सो 0.97 ऑफ x। क्लियर है। अभी जब ये ज्यादा है और ये कम है, अभी आपको जो बीट्स मिलेगी वो बीट्स होगी NA डिफरेंस ऑफ NB, यानी इन दोनों का डिफरेंस। सो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे वो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, 0.2 है, दोनों को माइनस किया, और ये वैल्यू जो बीट्स है वो क्वेश्चन ने क्या दी है, 6 है, ओके। तो 6 है, तो यहां पे हमने बीट्स की जगह 6 लिख दिया, यहां लिखा 1.02x माइनस 0.97x, करेक्ट बच्चों। अब इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो 6 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 0.03 और यहां पे आ जाएगा 0.05, तो 0.03 और 0.02, सो 0.05 करेक्ट है, और 0.05 ऑफ x आ गया। x की वैल्यू को आपने देखा तो 6 डिवाइडेड बाई 0.05 है, इसको हटाया, यहां से ऐसे भगाया 20। अब आपके पास है 600 डिवाइडेड बाय 5, इसको आपने कैलकुलेट किया, सो कितना आ जाएगा, 122.4, और ये हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 122 हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। सो यहां पे आपको बी करेक्ट आंसर दिख रहा है, सो यही बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 प्लेस्ड इनसाइड अ वाटर। फिर से साउंड का क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से देखें बच्चों। Inside a water, the speed of sound in is इतना, and in air it is 300 meter per second. The frequency of sound recorded by an observer who is standing in a air. So अभी हमने पीछे आपको एक बात बोली थी कि जब भी वेव, चाहे वो मैकेनिकल हो या नॉन मैकेनिकल वेव हो, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी ना तो रिफ्लेक्शन में चेंज होती है ना ही रिफ्रैक्शन में चेंज होती है, ये कांस्टेंट होती है, राइट। चेंज कब होती है, जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में, जो आपने डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा होगा, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। यहां पे ऐसा कहा गया है कि ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग इन एयर, सो स्टैंडिंग इन एयर रेस्ट में है, और प्लेस्ड इनसाइड द वाटर रेस्ट में है, मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, और देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, और देयर इज नो चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं रहेगा, तो जो भी फ्रीक्वेंसी वो रिकॉर्ड करेगा, जैसा बोला है साउंड रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर, दैट विल बी द सेम, एंड द करेक्ट आंसर एज यू कैन सी इज 600 हर्ट्ज। ओके, सो आई होप ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया।
चलते हैं अगले क्वेश्चन 39 की तरफ। 39 क्या कहता है बच्चों, इफ P is the pressure, V is the volume, R is the gas constant, obviously सब आपको मालूम होगा, and K is Boltzmann constant and T the absolute temperature, सारी चीजें आपको ऑलरेडी नोन है, then the number of molecules in the given mass of the gas is given by, okay, so number of molecules पूछा गया है, right? So आपको पता है P V is equal to N R and T, करेक्ट? बोलो बच्चों। अब यहां से आपको जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उस नंबर ऑफ मोल्स को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास ऑफ द गैस, ठीक है। सो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन इन द मास ऑफ द गैस है, सो आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में इसको कन्वर्ट करना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट? और एक आपको बोल्ट्जमैन वाला भी कांस्टेंट फॉर्मूला होता है, करेक्ट है बच्चों? ओके, सो बच्चों पीवी इक्वल टू एनआरटी से यहां से अगर हम एन की वैल्यू निकालना चाहें, नंबर ऑफ मोल जिसको आप कहते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी पीवी डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। अब हमको देखो आर नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में चाहिए, तो हम क्या करते हैं आर को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि आर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का रिलेशन होता है एन एवोगाड्रो नंबर इनटू के, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, एन इनटू यहां से P इंटू V और R की जगह लिख लिया है बच्चों N एंड स्मॉल k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड यहां हो गया T, ठीक है। अब इस N को उठा के यहां से इधर ले जाएंगे तो ये आप N इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां कहेंगे और ये आ जाएगा PV डिवाइडेड बाई K इंटू T। अब ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम जो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन मास, तो ये मोल्स हो गए, ये एवोगाड्रो नंबर हो गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम m कह सकते हैं, ये आ जाएगा बच्चों PV डिवाइडेड बाय K इंटू T। अब देखो ऐसा ऑप्शन क्या कहीं मिल रहा है बच्चों आपको? यस, ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है आंसर नंबर बी में, तो इसी के साथ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी। सो बी को करेक्ट करते हुए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ओके। सो 40 क्या कह रहा है, नेम द गेट विच रिप्रेजेंट द बूलियन एक्सप्रेशन। इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ सा दिया हुआ है, एक्चुअली होता है y इज इक्वल टू a और ये डॉट की तरह होता है, लेकिन इसको डॉट नहीं बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है और इसको पढ़ा जाता है y इज इक्वल टू a एंड b। सो जो बूलियन फंक्शन है दैट बूलियन फंक्शन इज तो ये कहां मिल रहा है, ये आपको बहुत ही आसान सा सस्ता सा क्वेश्चन मिल गया, तो ये एंड पे आप सीधे आंसर कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। आप पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक एटम, ओके फिर से बोर्स मॉडल पे आ गया, पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक एटम हैज इट्स ग्राउंड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम है और बाइंडिंग एनर्जी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि वहां से -13.6 होता है तो 13.6 हो जाती है। अब आपको ये पता है कि बाइंडिंग एनर्जी में जो रिलेशन होता था वो आप उसकी एनर्जी जो निकालते थे वहां z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती थी, है ना। पहले तो आप एनर्जी ऐसे लिखते थे दैट इज -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये हाइड्रोजन के लिए होता था। और उसके बाद अगर आप बात करें कि हाइड्रोजन लाइक एटम जिसका z एटॉमिक नंबर है तो z स्क्वायर होता है। अब अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 लिख लें और बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, सो बाइंडिंग एनर्जी किसी जनरल एटम हाइड्रोजन लाइक जिसका z एटॉमिक नंबर है z स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप जब यहाँ पे रखोगे बच्चों z की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, सो अभी यहां बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 122.4 इज इक्वल टू z स्क्वायर और यहां पे वैल्यू आ रही है 13.6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो कैलकुलेट करने के बाद यहां से z की वैल्यू आपको आ जाएगी 3।
सो एक तो चीज यहां आ गई। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 5, नो, इट्स एटॉमिक नंबर इज 3। An electron of 90 electron volt can excite it, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 122.4 है, तो 90 electron volt cannot excite। An electron of kinetic energy 45.9, तो पहले तो हमें निकालना है कि ये सारी चीजें हम जब देख सकते हैं जब हम पहली एनर्जी, जैसे यहाँ पे होता है -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब जो सेकेंड एनर्जी लेवल है जिसको आप n इज इक्वल टू 2 कहते हो, अगर उसके लिए देखोगे तो n इज इक्वल टू 2 के लिए आपको दूसरे का डिफरेंस चाहिए होगा। सो वो दूसरा डिफरेंस कैसे मिलेगा, उसके लिए आप कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो निकालना है। सो सेकेंड एनर्जी का जो डिफरेंस है, यानी ये डिफरेंस बच्चों को निकालना है, जिसको डेल्टा ई कह रहे हैं। तो आपको पता है यहां से 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी 122.4, और इधर ब्रैकेट रखोगे 1 माइनस 1 अपॉन एन। एन कौन सा है, जैसे यहां एन 1 है और इसके लिए एन कितना होगा 2, जब आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो यहां से कैलकुलेशन आएगा 122.4 इंटू 4 माइनस 1, यानी ये आ गया 3/4। अब 3/4 करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां से ये डिफरेंस आया इन दोनों के बीच का, पहले और दूसरे का। तो 45.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी ब्रॉट टू ऑलमोस्ट रेस्ट बाय दिस एटम। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नियरली, यहां पे ये कुछ मिल रहा है तो इसको अंडरलाइन करते हैं, मे इमर्ज फ्रॉम द एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स विद दिस एटम। ओके, सो 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे कोलाइड करेगा, और जब कोलाइड करने के बाद जाएगा तो यहां से आप देखोगे कि ऊपर पहुंचेगा, तो वो 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके, ठीक है, इमर्ज हो सकता है। तो इसलिए इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, वो डी दिख रहा है, और ये डी ही आपको यहां से करेक्ट ऑप्शन है, बाकी और सारे नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो अगला क्वेश्चन है 42। सो 42 क्या रहा है, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, फिर से एसी का है, वोल्टेज इन प्राइमरी दिया हुआ है, एंड करंट इज इतना, सेकेंडरी वोल्टेज इज फाउंड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है दोनों में रिलेशन होता है, वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू, इधर रिवर्स होता है, करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय करंट इन सेकेंडरी। अब जो वैल्यू दी हुई है वो हम यहां लिख लेते हैं। इन अ स्टेप अप द वोल्टेज इन प्राइमरी, तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों 220, एंड द करंट प्राइमरी में दिया है यहां 5 आ जाएगा। सेकेंडरी वोल्टेज इज फाउंड टू बी 22000। द करंट इन सेकेंडरी कॉइल, ये आपसे पूछा हुआ है, तो 220, यहां से 220 कैंसिल हो गया, यहां 220 100 आएगा। सो आई इन सेकेंडरी, यहां से देखोगे बच्चों, सो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.05 एम्पियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है, आंसर आ गया 0.05, और करेक्ट ऑप्शन आप ढूंढेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कह रहा है बच्चों, द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी केप्ट इन कूलर सराउंडिंग। ओके, कूलर सराउंडिंग, सो कूलर सराउंडिंग में ऐसे रखा हुआ है, एंड एज्यूम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो आपको पता है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसका आपने यहां से टेम्परेचर टाइम के साथ, थीटा के साथ जो टेम्परेचर है वो इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा। ये आपने ग्राफ डायरेक्टली पढ़ा होगा, और ये एक्सपोनेंशियली डाउन होता है, मतलब e टू द पावर -x में। तो वो करेक्ट ऑप्शन कितना आ रहा है, सीधे आपको दिख रहा है, आंसर इसका हो जाएगा बच्चों डी।
और इसी के साथ 43 खत्म होता है, 44 पे पहुंचते हैं। अ हीट इंजन इज अ डिवाइस, विच डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, नो ये यहीं से गलत हो गया। विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सही है। एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम अ सिंक एट लोअर टेम्परेचर, नो, नन ऑफ द अबव तो नहीं है। तो बच्चों ये तो सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। और हीट इंजन का है, वो हीट इंजन हीट एब्सॉर्ब करता है हाई टेम्परेचर से, उसका कुछ पार्ट कन्वर्ट करता है मैकेनिकल यूजफुल वर्क में, और बचे हुए हीट को आपको कन्वर्ट वो ट्रांसफर कर देता है लोअर टेम्परेचर यानी कि सिंक में। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होता है बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, अभी हम इसको कहां यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं। किस तरह से यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में यूज कर रहे हैं, राइट, करेक्ट। सो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पे होता है, आपको पता है कि जब एम्पलीफायर में यूज करते हैं तो आपका जो ग्राफ होता था बच्चों, वो ग्राफ कुछ इस तरह का आता था, राइट। तो जो मिडल रीजन होता है यहां पे सबसे ज्यादा ग्रेडियंट है, तो हम इसको एम्पलीफायर में यहीं पे यूज करते हैं, राइट। अब अगर आप इसको एम्पलीफायर में यहां यूज कर रहे हैं तो मिडिल ऑफ इट्स एक्टिव रीजन, क्योंकि ये एक्टिव रीजन कहलाता था, यहां से यहां तक का ये एक्टिव रीजन है, और यही पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 45 में आंसर मिल जाएगा बच्चों ए। ओके, सो इसी साथ अपने 45 क्वेश्चंस बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बच्चों आए हैं, जिसमें जो भी नया कंसेप्ट है, जो आपको ऐसा लगा, जो आपको पहले नहीं आता था और अभी आपको पता चला, उसको अलग कॉपी में नोट करना, उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और अच्छी तरह से वो कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय। आप देख रहे थे अभी इंटरैक्टिव फिजिक्स लर्निंग बाय एमएसडी सर, और इसी के साथ बाय बाय। अगला वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड होगा। ओके, एंड गाइस प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।